सो हेलो हाय नमस्कार वेलकम टू माय चैनल द मसल टीचर। सो जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोग एक सीरीज कर रहे हैं जो कि एनसीईआरटी के ऊपर बेस है एंड वी आर कंटिन्यूइंग विद द क्लास 8 एनसीईआरटीज। सो आज एक चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि है व्हेन पीपल रेबेल। ओके, यू नो इट विल टॉक अबाउट द 1857 रिवोल्ट and as we know, this is an important chapter as well, okay, from exam point of view also. So we will discuss about it. Okay, let me change the color and thickness so that it will be properly visible to you guys. I guess it is now, it will be visible. So see, now we'll start with the chapter, and before starting the chapter I'll give you a brief introduction to all these things that have happened in the 1857 year of 1857. Okay, let me discuss. Okay, okay, let me make it red so that it will be visible over here as well, here as well. Okay, okay, ठीक है. Wherever it will not be visible, I'll try to make the color change in the pen. Okay, so that it will be okay. So see, we'll start the chapter with a sort of short brief to the chapter. Okay, let me talk about it. See, when the Britishers, okay, when the Britishers, they took over the Diwani rights. Okay, they took over the Diwani rights. I think you might remember those. After the battle of Buxar, after the battle of Buxar, I think 64. Okay, 64. They got the Diwani rights. 1764. They got the Diwani rights. Okay, of Bengal, of Bengal. Okay, after the Buxar, okay, they got the Diwani rights of Bengal, and then slowly they tried to get over all those territories. They tried to get over all those revenues. Okay, so that they can make India crawl. Okay, they can make the country crawl because their main agenda was to loot, was to earn a lot much of profit by their strong, or you can say very revenues, you can say that you know taxes, and you also can say that by strong control over the policies as well. ठीक है, सो उन्होंने क्या किया था उस टाइम. ओके, सी, there were different kings or nawabs during that point of time. Okay, so when Britishers, okay, they took over these territories of these nawabs. Okay, then there's an obvious reason they will feel helpless, they will feel powerless, obviously, because their revenue has been taken away, the control of the territory has been taken away. Okay, so obvious reason they will feel helpless, they'll feel powerless, because they have been ruling from a certain period of time, and all of a sudden their power has been trashed from them and is taken away, and they will feel helpless. Okay, so see, we'll start with the thing that the power of Nawab and the kings. Okay, let me just give a brief on this. Then I'll make you point wise understand of these chapters of this slide. See, what happened? These Britishers. I said earlier also, they were very clever. Okay, they're very clever. They always in a way that they will, how they will control some of the territories, how will take away the territories, how they will have a revenue, fixed revenue over those areas. वो हमेशा वो सोचते रहते हैं कि क्या करेंगे, ऐसा क्या करने से हम लोग के पास ये रेवेन्यू आ जाएगा, ऐसा क्या करने से लैंड हम लोग के अंडर आ जाएगा. ओके, सो उससे पहले वो क्या बोले कि ओके, फर्स्ट इन लोगों को क्या करते हैं, फर्स्ट इन लोगों को तोड़ते हैं. ठीक है, सो सी व्हाट दे डिड, दे फर्स्ट स्टार्टेड, हाउ they first started with these Britishers. Okay, they place some of the residents in their courts. ठीक है, they place some of the residents in their courts. residents मतलब क्या, उन्होंने क्या किया, जितने भी राजा हुआ करते थे उस टाइम, जितने नवाब हुआ करते थे उस टाइम, उन लोगों का जो कोर्ट था, ठीक है, जो कोर्ट रूम होता है, राजा का दरबार जो था, ठीक है, वहां पर उनका एक आदमी वहां पर उनको बिठा कर रख दिया. क्यों? देखो, अगर वो इंसान वहां पर रहेगा
तो वो जान जाएंगे कैसे वो काम किया जाता है, कैसे वो काम करते हैं, व्हाट आर लूपहोल्स दे आर हैविंग, एंड दिस इज हाउ ब्रिटिश गॉट कंट्रोल ओवर द इंटरनल अफेयर्स। एंड दैट इज व्हाई जब ये रेसिडेंट उनके कोर्ट में प्लेस हुआ ना, दे लॉस्ट दिस किंग्स, दिस नवाब्स, ओके, दे डू नॉट हैव एनी मोर फ्रीडम। ओके, दे डू नॉट हैव एनी मोर फ्रीडम, उनके पास कोई फ्रीडम ही नहीं बचा। क्यों? क्यों? देखो, हर वक्त तुम्हारे घर में एक इंसान बैठा रहेगा, तुम लोगों को देखेगा, तो ऑब्वियसली विल फील ऑकवर्ड। एग्जैक्टली लाइक दैट द रेसिडेंट हैज बीन प्लेस्ड इन द कोर्ट इन ऑर्डर टू लुक आफ्टर all those things that has been taken, is having, that has been going on in the court. फिर क्या हुआ? नेक्स्ट व्हाट हैपेंड? दे सेड दैट यू हैव टू डिसबैंड द आर्मी। इसका मतलब क्या? आर्मी वाज डिसबैंडेड। देखो, आर्मी वाज डिसबैंडेड। उनका जो आर्मी था, ठीक है, उनका जो आर्मी था वो आप अभी नहीं रख पाओगे। आप अपने खुद का आर्मी नहीं रखोगे, जो ब्रिटिश आर्मी होगा आप उसके देखभाल करोगे। वी हैव रेड अबाउट दिस ना, जो क्या बोलते हैं उसको, सब्सिडियरी अलायंस, सब्सिडियरी, एग्जैक्टली वही चीज, ठीक है। उसका अपना कोई आर्मी नहीं रहेगा। फिर उन्होंने क्या बोला? द टेरिटरीज वर एनेक्स्ड, द टेरिटरीज वर एनेक्स्ड ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ अदर। देखो, थोड़ा सा पीछे चलेंगे जब, ठीक है, जब बाय द टाइम when what is name, Dalhousie, what is name, Dalhousie, okay, Dalhousie came up with what? Dalhousie came up with what? Dalhousie came up with doctrine of lapse. Dalhousie came with what? Doctrine of lapse. He came up with doctrine of lapse, in which he said that the kings who do not have their own male heir, okay, their kingdoms will automatically, their territories will automatically be moving out to the British. The British can annex those territories if you do not have your own heir. मतलब ओन, अगर खुद का अगर बच्चा नहीं होगा, अडॉप्टेड नहीं, खुद का अगर बच्चा नहीं होगा, तो ब्रिटिश उसको वो जो टेरिटरी उसको कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। तो एग्जैक्टली उस टाइम हुआ, उन्होंने क्या किया, एक एक करके सब जगहों को एनेक्स किया, एक एक जगह को कब्जा कर लिए। और कोई कोई ऐसा भी जगह था जहां पर दे हैव टुक ओवर ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस, द प्रिटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस। अवध, ठीक है, अवध जो था, ठीक है, अवध जो था, उन्होंने इसी प्रिटेक्स्ट में उनको कैप्चर कर लिया कि वहां पर मिस गवर्नेंस है, ठीक है। पहले तो सब्सिडियरी अलायंस में उसको कैप्चर कर लिया था, ठीक है। उसके बाद आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम उसको बोले कि वहां पर मिस गवर्नेंस हो रहा है, तो वी नीड टू हैव दिस ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, इसलिए हम उसको कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। ये मैं आगे जाकर उसको बताऊंगा, ठीक है। फिर सुनो, फिर क्या हुआ, देखो मैंने लिखा भी है, अवध was annexed in 1856 on the basis of mal administration. इससे पहले it was captured on the basis by subsidiary alliance, ठीक है। इससे पहले it was captured on the pretext of subsidiary alliance. फिर देखो अब क्या हुआ, जो उस टाइम जो मेन हम लोग का मुगल एम्परर हुआ करता था, उसका नाम क्या था? बहादुर शाह। उसका नाम क्या था? बहादुर शाह जाफर, ओके, बहादुर शाह जाफर, ठीक है। ही वॉज द मुगल एम्पर बैक देन, ठीक है। जैसे कि आज हम लोग के we do have every country they have some of the important persons face on their coins. हम लोग के यहाँ अशोक स्तंभ कॉइन के ऊपर, हम लोग के नोट्स के ऊपर we have गांधी जी। Similarly, during that point of time, Bahadur Shah Zafar's face was imprinted and minted on those coins. Britishers stopped this, okay, Britishers stopped this. As you see, the Mughal king name was removed from the coins, ठीक है। जो बहादुर शाह का नाम जो था, मुगल किंग जो जितने भी नेम थे उसको बंद कर दिया गया। दैट आर मिंटेड बाय द कंपनी, जो कंपनी मतलब ब्रिटिश कंपनी जो भी कॉइन्स उस टाइम मिंट कर रहे थे उसको अभी क्या किया, वो लोग बंद कर दिए, जिसके ऊपर मुगल का नाम हुआ करता था उसको उन्होंने बंद कर दिया। फिर क्या हुआ, एंड देखो लॉर्ड कैनिंग जो थे, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो थे, they declared Bahadur Shah Zafar as the last king of Mughal dynasty, and he announced none of the descendants would be recognized as kings, and rather they will not be, and they will be called as princes. देखो क्या हुआ, ये जो डलहौजी जो था, ठीक है, डलहौजी जो था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, अभी के टाइम से जो भी जितने भी कॉइन्स है उनके ऊपर से पहले मुगल का नाम हटा दो पहले, ठीक है। फिर इस टाइम लॉर्ड कैनिंग जो हम लोग के पहले वाइसरॉय हुआ करते थे, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने क्या किया, वो बोले एक काम करते हैं हम लोग, आज ये जो लास्ट जो मुगल रूलर होगा वो बहादुर शाह जफर होगा। उसके बाद अगर उनके कोई बेटा बेटी भी है, उनके तो बेटे थे, जो भी उनके बाद जो आएंगे उनको क्या किया जाएगा, उनको राजा नहीं बोला जाएगा, और क्या किया जाएगा, उनको रेड फोर्ट से निकाल देंगे,
ठीक है, उनको जो रेड फोर्ट उस टाइम वो पैलेस हुआ करता था, तो रेड फोर्ट से उनको निकाल देंगे, लेकर बाहर लेके कोई दिल्ली में कोई जगह में उनको रख लेंगे। लेकिन उनके बाद मतलब बहादुर शाह जफर के बाद किसी को भी राजा नहीं बोला जाएगा मुगल के एम्परर से, मुगल किंगडम से, ठीक है, ये बोला गया था। एंड दैट इज व्हाई दे विल बी कॉल्ड एज प्रिंसेस ओनली, ऑल दे विल बी कॉल्ड एज व्हाट, प्रिंस। उसके खिलाफ कुछ भी नहीं, उसके बाद कुछ भी नहीं, ठीक है। बहादुर शाह जफर विल बी द लास्ट मुगल किंग, इतना डिक्लेयर कर दिया। किसने डिक्लेयर किया था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग वाज द लास्ट, वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? ओके, देन देखते हैं सी। ओके, सी सी ये जितना भी हुआ करता था, किसने फेस किया था? जो नवाब हुआ करते थे, जो राजा हुआ करते थे, दे वर फेसिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम। नाउ व्हाट ऑल प्रॉब्लम्स दैट वी हैव विद द सिपॉयज, वी हैव विद द पीजेंट्स, विल डिस्कस इट अगेन, ठीक है। मैं फिर से उसको रिकैप करता हूं, जितने भी प्रॉब्लम्स नवाब और राजा, जो राजा होते, किंग्स होते थे, वो लोग फेस करते थे। देखो, पहले तो क्या उनको बोला गया कि आपके पास खुद का कोई आर्मी नहीं रहेगा, यू विल नॉट हैव योर ओन आर्मी, सो आर्मी वाज डिसबैंडेड, ठीक है। सेकंड व्हाट, देयर रेवेन्यू पावर और रेवेन्यू कलेक्शन पावर हैज बीन टेकन अवे बाय द ब्रिटिशर्स, ठीक है। पैसे का जो था, देखो, राजकोष जो होता है उसी से नो किंगडम थोड़ा फ्लोरिश करता है, पेरिश करता है, ठीक है। तो वो क्या हुआ, उसको भी ले लिया, ठीक है। सो दे डिनाइड द this revenue collection, they took over the revenue collection who, Britishers, वो भी हुआ। Then what happened, they said that no, so they annexed lot many of kingdoms or lot many of territories on the pretext of what, doctrine of lapse. They also annexed Awadh in the pretext of misgovernance. They also captured other territories on the basis of this subsidiary alliance also. ये सब करके उन्होंने सब क्या किया था, धीरे धीरे करके एक एक करके बहुत सारी चीज कैप्चर कर लिए थे, ठीक है। बहुत सारी जगह को कैप्चर कर लिए थे, टेरिटरी को कैप्चर कर। देखो, जब ये सब चीज हुआ था, ठीक है, एक बात मैं यहां पर बोलना ही भूल गया था, ठीक है, बोलता हूं, रुको जस्ट अ मिनट। ओके, हाँ देखो, व्हाट हैपेंड, यहां पर मैं एक बात भी तुम लोग को बोलना भूल गया था कि आई एम सॉरी, देखो क्या था, जब ये सब जो नवाब्स हुआ करते थे, जो किंग्स हुआ करते थे, जब इनको जो ये सब चीज प्रॉब्लम हुआ ना, ये देखो एक बात यहाँ पर जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से, जैसे कि बहुत झांसी हुआ, सतारा हुआ, नागपुर, नागपुर भी है, उदयपुर भी है, संबलपुर भी है, ये सबको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर से डलहौजी ने कैप्चर कर लिया था, ठीक है। देखो, जब ये सब चीज होने लगा कि बहुत सारे राजा जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, बहुत सारे नवाब बहुत सारा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तो उनमें से कोई कोई आया जिन्होंने उनके साथ नेगोशिएट करने का कोशिश किया। किसके साथ? दे ट्राई टू नेगोशिएट विद द ब्रिटिशर्स, हु, सम ऑफ द किंग्स, सम ऑफ द नवाब्स, ठीक है, दे वांटेड टू नेगोशिएट विद द ब्रिटिशर्स इन ऑर्डर टू सो दैट दे कैन हैव देयर किंगडम्स। तो कौन कौन थे उनमें से? जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, यहां पर दिखेगा, शायद यहां ऊपर आई गेस दिखेगा, वहां पर एक थे रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई भी थी, ठीक है। वो भी बोली थी आकर कि उनके जो बेटे हुआ करते थे, ठीक है, वो अडॉप्टेड सन थे, उनके जो बेटे थे वो क्या थे? अडॉप्टेड सन थे। सो शी वांटेड दैट नॉट देयर किंगडम शुड नॉट बी टेकन अवे ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ दिस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है। वो उसके भी नेगोशिएट करने की कोशिश किए थे ये, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। और भी कौन आए थे? नाना साहब भी आए थे। कौन आए थे? नाना साहेब, नाना साहब आए थे। नाना साहब कौन थे? जो पेशवा बाजीराव टू के, बाजीराव टू के अडॉप्टेड सन थे। ये कौन थे? अडॉप्टेड सन, ठीक है। ये कौन थे? अडॉप्टेड सन। कौन? नाना साहब। ये क्या बोले कि नाना साहब बोले कि मेरे पिताजी का जो भी पेंशन है वो मेरे को मिलना चाहिए, ओके। दे ही आल्सो ट्राइड नेगोशिएट, ये भी नहीं हुआ। दे दिस वाज रिजेक्टेड बाय, दिस वाज रिजेक्टेड बाय हुम? बाय द ब्रिटिशर्स, ठीक है। सबको समझ में आया चीज, ठीक है। ऑब्वियसली जब हम लोग देखेंगे कि हम लोग के ऊपर आगे प्रॉब्लम आने वाला है, सो वी ट्राई टू कॉम्प्रोमाइज दैट ना, हम लोग जाते हैं ना कॉम्प्रोमाइज के लिए कि हाँ ठीक है, एक काम करते, तेरा नहीं मेरा नहीं, हम लोग ये बीच का रास्ता निकालते हैं। एग्जैक्टली लाइक दैट द पीपल ट्राई टू नेगोशिएट बिकॉज दे न्यू अगर ऐसा नहीं होगा तो शायद हम लोग के ऊपर अटैक करके हम लोग को कैप्चर कर लेंगे, ओके। नाउ सी,
Okay. Now, as I said, what all the problems was faced by these सिपॉयज हो या फिर जो भी हम लोग peasants थे, देखो peasants का क्या problem था? These peasants, these peasants, they were facing problems because there was a very rigid revenue collection ways. The way how they were collecting the revenue was very 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 much rigid. ठीक है, और हाई टैक्स ऑल्सो था, बहुत ज्यादा रेवेन्यू था, कलेक्शन जो पैसा जो था बहुत ज्यादा था, एंड जो टैक्सेस कलेक्शन का जो वे था इट वाज वेरी रिजिड. ठीक है, जैसे लिखा गया है देखो, ठीक है, हाई टैक्सेस, आई एम सॉरी, देखो देखो क्या लिखा है, हाई टैक्सेस एंड रिजिड मेथड्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन. ठीक है, हाई टैक्सेस एंड रिजिड वे ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन. ये किसका प्रॉब्लम था? पीजेंट्स का प्रॉब्लम था. ठीक, क्या था? हाई टैक्स, रिजिड वे ऑफ कलेक्टिंग टैक्सेस. ठीक है, ये भी प्रॉब्लम था पीजेंट्स का. और क्या हुआ था? ये जो पीजेंट्स हुआ करते थे उस टाइम, वो लोग ना कभी कभार क्या होता था, अगर रेवेन्यू नहीं दे पाते थे, ओके, अगर मान लो किसी से पैसे लिए, जो मनी लेंडर से पैसा लिए सब रेवेन्यू कभी कभार देने के लिए, खेती करने के लिए, अगर वो पैसा नहीं लौटा पाते थे, सो नाउ व्हाट हैपेंड, देयर लैंड्स वाज बीन टेकन अवे बाय दोज मनी लेंडर्स. ठीक है, क्या होता था? फॉर एन एग्जांपल, ठीक है, कि सपोज फॉर एन एग्जांपल दिस, सपोज एक पीजेंट है, सपोज एक पीजेंट है, ओके, ही टुक लोन, okay, from a money lender. If by any chance they were not able to repay them, अगर they were not able to repay them, their land were being taken away by those money lenders. सोचो, अपने पुरखों की जो जमीन हुआ करता था, the land they has been tilling from like long time, जो खेती वेती सिंचाई विचाई करते रहे थे बहुत टाइम से, वो लैंड को क्या करते थे? मनी लेंडर ले जाते थे, बिकॉज दे वर नॉट एबल टू पे. जैसे आज भी होता है ना, हम लोग अगर बैंक से हम लोन लेते तो अगर लोन नहीं दे पाते तो बैंक कम्स एंड टेक अवे दैट लैंड जिसको हम लोग गिरवी रखे होंगे. एग्जैक्टली ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट इज बीइंग हैपनिंग. एम आई क्लियर? क्लियर हो? सबको समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब देखो फिर क्या हुआ. जैसे मैं लिखा गया यहाँ पर, देखो, peasants took cash loans from money lenders at high interest rates. If they are not, see, in order to pay revenues, most of them lost their land. बहुत लोग लैंड अपना खो देते थे. क्यों? बिकॉज दे वर नॉट एबल टू रिपे द लोन. यही होता था, अगर लोन में नहीं दे पाता था तो लोग लैंड को आकर कैप्चर कर लेंगे. ठीक है, ये क्या था? दुख किस बात का था ये सब? ठीक है, पीजेंट्स का. और एक क्या था? ठीक है, पीजेंट्स लॉस्ट देयर लैंड्स. ठीक है, पीजेंट लॉस्ट देयर लैंड्स. ठीक है, ये किसका प्रॉब्लम था? ये पीजेंट्स का प्रॉब्लम था. अब सिपॉयज का क्या प्रॉब्लम हुआ करता था उस टाइम? ठीक है, सिपॉयज का क्या प्रॉब्लम हुआ करता था? व्हाई डू दिस सिपॉयज वर हैविंग प्रॉब्लम्स? ठीक है, व्हाई डू दिस सिपॉयज वर हैविंग प्रॉब्लम? सुनो, क्या प्रॉब्लम हुआ करता था? सी, द सिपॉयज वर हैविंग प्रॉब्लम. ठीक है, द सिपॉयज वर हैविंग प्रॉब्लम बिकॉज their working condition was bad. ठीक है, वर्किंग कंडीशन जो था वो बहुत ही बेकार था. सेकंड क्या था? कि they were having no allowances. कुछ प्रिविलेज मिलना चाहिए, कुछ अच्छा कंपनी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से मिलना चाहिए, वो भी नहीं था. दे वर हैविंग लो पेमेंट, जो पैसा था, सैलरी जो था वो भी बहुत खराब था. ठीक है, एंड सबसे जो मेन चीज हुआ करता था, जो सबसे ज्यादा टेंशन वाला चीज था, क्या था? देखो क्या था? द कंपनी केम अप विथ ए न्यू रूल. ठीक है, कंपनी एक नया रूल के साथ आया. न्यू रूल क्या था? न्यू रूल कि व्हेनेवर न्यू रिक्रूट विल कम, अगर वो फिर से कहीं नया रिक्रूट रखेंगे, तो व्हेनेवर द कंपनी वांट्स एंड वेरेवर दे वांट्स, जब भी कंपनी चाहे एंड जहां पर भी चाहे, यू हैव टू सर्व द कंपनी. आप लोगों को कंपनी को सर्व करना पड़ेगा. एंड इसलिए क्या होता था, दिस इंडियन सिपॉयज, दे वर सेंट टू अदर स्टेट, अदर कंट्रीज. ठीक है, दे वर सेंट टू अदर कंट्रीज. ठीक है, वाया सी. यही बात को देखो. ठीक है,
समंदर के रास्ते से उनको बाहर भेजा जाता था, बाहर कंट्रीज में भेजा जाता था। कहां पर उस टाइम तो था एक बर्मा, बर्मा, दे वर सेंट टू बर्मा, ठीक है। अब सोचो, व्हेन दे वर सेंट टू अदर कंट्रीज वाया सी, तो हम लोग का एक बिलीफ सिस्टम हुआ करता था उस टाइम, ठीक है। इफ समवन ट्रेवल्स बाय सी एंड दे गो नो टू गो बियॉन्ड सम डिस्टेंस, सो उनका रिलीजन के ऊपर उनको प्रॉब्लम आता था कि उनका धर्म नष्ट होता, वो बोलते थे क्या, उनका धर्म नष्ट होता था, ठीक है। दे विल लूज देयर रिलीजन इफ दे ट्रैवल बाय सी टू फार ऑफ डिस्टेंसेस, ठीक है, ऐसा उनका मानना था। तो ऑब्वियसली अगर ये होता था तो सिपोज को प्रॉब्लम होगा कि नहीं, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि वो एक तो दूर जा रहे हैं, पहली बात अपने फैमिली को छोड़ के जा रहे हैं, वो भी है, एंड दूसरा तुम अपने मेरे रिलीजन को भी खतरे में डालकर मैं जा रहा हूं, ठीक है, बिकॉज दे आर बीन फोर्स्ड टू गो, दे आर बीन फोर्स्ड टू गो। एंड क्या होता था, कभी कभार लोग मना, जब ये सब मना करते थे, ठीक है, सम ऑफ द sepoys, they deny to do so, they wanted to go by land route, they are being severely punished, they are being severely punished। देखो जैसे मैंने बोला, they were dissatisfied with the low pay, allowances and condition of service, working condition, allowances and low pay, ठीक है। फिर क्या हुआ, कंपनी passed a new law according to which sepoy had to travel overseas, समंदर से आगे वहां जाना पड़ेगा, whenever required by the company, जब भी जरूरत होगा कंपनी, जैसे मैंने बोला वही था, ठीक है। इट इज ऑल्सो बिलीव्ड बाय द हिंदूज दैट वन को लूज द कास्ट स्टेटस, उनका धर्म नष्ट होगा, ठीक है, रिलीजन भी नष्ट होगा, इफ ही क्रॉसेस द सी, अगर समंदर के रास्ते से वो आगे जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? एम आई क्लियर टू एवरीवन? क्लियर? क्लियर, ठीक है। फिर देखते हैं, देखो, ठीक है, फिर क्या हुआ, अब देखो, we'll discuss some of the things। देखो क्या था, नहीं हुआ क्या? ओके, देखो नाउ क्या हुआ, देखो नाउ दिस ब्रिटिशर्स, ओके, दिस ब्रिटिशर्स, जैसे कि मैंने बोला था, वो हमेशा सोचते थे कि इंडिया अनसिविलाइज्ड है, इंडिया में सिविलाइज कोई भी सभ्य किस तरीके का इंसान नहीं है, इंडिया के अंदर एजुकेशन नहीं है, हम लोग उनको सभ्य बनाएंगे, वो पहले से वो बोलते आ रहे हैं, एग्जैक्टली लाइक दैट। दे ट्राई टू ब्रिंग सम चेंजेस इन द सोसाइटी, दे ट्राई टू ब्रिंग सम चेंजेस इन सोसाइटी। इसके बारे में हम लोग पहले भी कोई चैप्टर में बताए हैं, फिर से इसको सुनेंगे। देखो व्हाट हैपेंड, ठीक है, सी दे बिलीव दैट, ठीक है, इंडियन सोसाइटी जो था वो बैकवर्ड था, जैसे कि मैंने बोला वो बैकवर्ड है, एंड नीडेड टू बी रिफॉर्म, चेंजेस उसको चाहिए। रिफॉर्म मतलब क्या? चेंजेस। रिफॉर्म मतलब क्या? चेंजेस, उनको चेंजेस चाहिए। एंड क्या चेंजेस चाहिए कि देखो, अगर कोई चीज अगर खराब है, कोई इविल चीज, इविल प्रैक्टिसेस यहां पर चल रहे, तो उसको हम बदलेंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, पहली बार इसलिए उन्होंने क्या किया, द ब्रिटिश पास्ड अ लॉ बैनिंग द प्रैक्टिस ऑफ सती, सती प्रथा उन्होंने पहले ही रोका था, बैन किया था, ठीक है। दिस एंड ऑल्सो एनकरेज क्या, विडो रीमैरिज, एंड ऑल्सो एनकरेज क्या, विडो रीमैरिज। एंड देखो क्या हुआ था, बताता हूं, जैसे कि ये सती जो था, सती, ठीक है, विलियम बेंटिक विद द हेल्प ऑफ राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय। एंड ऑल्सो दिस विडो रीमैरिज, एनकरेज विडो रीमैरिज, ठीक है। विडो रीमैरिज कौन थे? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है, ये भी थे, उनका हेल्प कर रहे थे। और देखो क्या हुआ था, देखो फिर देखो ब्रिटिशर्स जो थे ना, दे वर वेरी 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 क्लेवर, ठीक है, जैसे मैंने बोला, हमेशा बोलता हूं, दे वर वेरी क्लेवर। उन्होंने क्या किया, एक लॉ पास करवा दिया, या फिर लोगों को ज्यादा छूट दे दी। उनके जो मिशनरीज हुआ करते थे, ठीक है, उनके जो प्रीचर्स हुआ करते थे, जो उनके रिलीजन के बारे में बताए, उनको छूट दे दिया पूरा, कि क्या करो, जाओ सबको कन्वर्ट करवाओ, ठीक है। कैसे? अपने रिलीजन के बारे में बताओ, अपने सब अच्छे चीज के बारे में बताओ, एंड ये भी बताना, अगर तुम लोग कन्वर्ट भी हो गए, देन फिर भी तुम लोग का जो अपना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वो भी तुम क्या करोगे, ट्रांसफर कर पाओगे। देखो क्या होता है, नॉर्मल जो हम लोग का जो हिंदू हम लोग का जो हिंदू लॉज है, if someone goes beyond the caste system or goes beyond the religion, I guess, okay, now they will not be able to get those ancestral properties, ठीक है। तो उस टाइम वो लोग क्या किए, यही लॉ पास करवाए
अगर मैं कन्वर्ट भी हो रहा हूं क्रिश्चियन में, तभी भी आई विल गेट द प्रॉपर्टीज ऑफ माई एंसेस्टर्स। ठीक है, वो ऐसा बोल दिए। am I क्लियर? ठीक है, 1850 में द लॉ पास हुआ अकॉर्डिंग टू विच द इंडियन हु हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी कुड इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ एंसेस्टर्स। ठीक है, वही मैंने बताया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? क्लियर? ओके, फिर देखते हैं। ठीक है, फिर कौन सा क्या देखें? ठीक है, देखो सी। अच्छा, मेरे को ये बताओ, 1857 को जो रिवोल्ट हुआ, ठीक है, 1857 को जो रिवोल्ट हुआ, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो मेरा ये बोलना है, इससे पहले भी तो बहुत सारे झगड़ा हुए हैं, इससे पहले भी तो बहुत सारे वार हुए हैं, तो यही क्यों फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? 1850 का जो रिवोल्ट है, इसको ही क्यों बोला जा रहा है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? उससे पहले वाला क्यों नहीं? उससे पहले भी तो बहुत सारे झगड़े हुए हैं, बहुत सारे वॉर्स हुए हैं, क्यों? सी, क्योंकि इससे पहले जितने भी सब हुए हैं ना, दे वर सोल इंडिविजुअल, दे वर सोल इंडिविजुअल, सब अपने अपने वाला इंडिविजुअल का था। ठीक है, सपोज कोई किसी के ऊपर अटैक कर रहे हैं तो वो अटैक कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बोला था, तो आप लोग, सॉरी आप नहीं बोला, 1817 में, ठीक है, 1817 में, ठीक है, खोर्धा में, ठीक है, खोर्धा में, हम लोग का जो खोर्धा है, ठीक है, भुवनेश्वर खोर्धा, ठीक है, खोर्धा में क्या हुआ? एक ऐसे ही अपराइजिंग हुआ था, ऐसे एक रिवोल्ट हुआ था, ठीक है, जिसमें कि खोर्धा के ऊपर अटैक कौन करते हैं? मराठास अटैक करते हैं। ठीक है, कौन अटैक करते हैं? मराठास अटैक करते हैं। ठीक है, एंड मराठास नो डिफीटेड खोर्धा किंग, नो आई थिंक बाली सिंह देव जी उस टाइम थे। ठीक है, मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। तो खोर्धा के ऊपर वो अटैक करते हैं एंड खोर्धा को डिफीट करते हैं एंड मराठा टुक ओवर द किंगडम। ठीक है, तो इनके जो बेटे हुआ करते, उस टाइम क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद इनके जो बेटे हुआ करते थे, मुकुंद देव जी, ठीक है, क्या हुआ था? मुकुंद देव जी, ठीक है, ये क्या करेंगे? ये जाएंगे किसके पास? ये जाएंगे ब्रिटिश के पास, ये जाएंगे किसके पास? ब्रिटिश के पास, एंड बोलेंगे कि प्लीज डू हेल्प मी। ठीक है, मैं अपना जो राज्य है उसको फिर से पाना चाहता हूं। एंड क्या होगा? ब्रिटिश बोलेंगे ठीक है, आई विल गेट यू द किंगडम। ठीक है, ऐसा तो क्या होता है उसी में हम लोग का जो एंग्लो मराठा वार होता है, हम लोग का क्या होता है? एंग्लो मराठा वार जो होता है, उसमें क्या करते हैं? फिर से जो इंग्लैंड होता है, तो ब्रिटिश होता है, उसमें वो क्या फिर से कैप्चर कर लेंगे उड़ीसा को, खोर्धा को फिर से कैप्चर कर लेंगे। एंड व्हेन मुकुंद विल गो टू देम एंड आस्क फॉर द किंगडम, दे विल डिनाई इट। ठीक है, दे विल डिनाई इट। बस मुकुंद देव जी को क्या बोलते हैं? जो जगन्नाथ टेम्पल का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, श्री जगन्नाथ टेम्पल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, बस उसी को ही वो देंगे। ब्रिटिश को क्या, बस उसी को बोलेंगे यू कैन टेक दिस, बट ऑल द रेवेन्यू एंड अदर राइट्स विल बी टेकन बाय द ब्रिटिशर्स। ऐसे जो बोलते हैं ना, ऑब्वियसली उन्होंने गेम खेल लिया, तो वही किए वो लोग, ब्रिटिशर्स लोग। ठीक है, अब देखो, तो मैं ये बोला था कि क्योंकि इससे पहले जो मैं बोला कि सब लोग इंडिविजुअल थे, कोई अकेला अकेला था इसलिए, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम अलग अलग रीजन से, अलग अलग क्षेत्र से, मतलब कि बहुत सारे लोग पीजेंट्स भी हैं, फार्मर्स, लैंडलॉर्ड्स, यू कैन से, यू कैन से जमींदार, यू कैन से किंग्स, यू कैन से वुमेन्स, एवरीवन केम टुगेदर। ओके, everyone came together and they formed a confederation and they fought against Britishers। इसीलिए इसको बोला जाता था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उससे पहले जो हुए वो अपने आप के लिए हुए हैं, सब इकट्ठा, कोई देश के लिए नहीं सोचा था उससे पहले। am I क्लियर? क्लियर एवरीवन? क्लियर? ठीक है, ठीक है, तो इसको पहले डिस्कस करते हैं कि क्या, what all things, what are the immediate cause of this, रिवोल्ट। सुनो, मैं बताता हूं क्या हुआ उस टाइम। क्या हुआ, लंदन से, ठीक है, लंदन का जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, वहां से क्या हुआ, वहां से एक गन आया था। क्या है? एक गन मतलब एनफील्ड राइफल, एक राइफल आया था जिसको हम बोलते हैं क्या? एनफील्ड राइफल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ठीक है, एनफील्ड राइफल बोलते हैं। ठीक है, एक एनफील्ड राइफल बोलकर वहां से, जो लंदन का जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होता है, वहां से ये आया। ठीक है,
एंड वो क्या हुआ, इसमें जो कैटरीज भरना पड़ा, जो गोली बारूद जो भरना पड़ता था, ठीक है, द कैटरीज जो था, ठीक है, इट वाज ग्रीस्ड, उसके ऊपर एक पेपर हुआ करता था, उसके ऊपर क्या, एक ऐसे करके एक पेपर हुआ करता था, ठीक है, उस पेपर को ऐसे निकालना पड़ता था मुंह से, फिर उसके ऊपर लोड करना पड़ता था, ठीक है। जो र्यूमर्स आया था उस टाइम, कुछ र्यूमर्स आया, सी नोबडी नो इट इज ट्रूथ और नॉट, बट देयर वाज अ र्यूमर, ठीक है, र्यूमर ऐसा आया था कि जो पेपर हुआ करता था वो पेपर ग्रीस्ड है, मतलब उसके ऊपर लगाया गया किससे ना, द फैट्स ऑफ काउज एंड द फैट्स ऑफ काउज एंड पिग्स, ठीक है, द कैट्स ऑफ काउज एंड पिग्स। अब देखो क्या हुआ, जब ये चीज बोला गया, ठीक है, कि उस ग्रीस्ड राइफल जो कैटरीज में काउज एंड पिग्स के फैट लगे हुए, तो ऑब्वियसली इट हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ बोथ द कम्युनिटीज ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। दोनों कम्युनिटी को वो बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ उनके सेंटिमेंट्स को, ठीक है, बिकॉज इट इज वेरी पायस फॉर द हिंदूज एंड इट इज वेरी बैड फॉर द मुस्लिम्स एज वेल, ठीक है, आज जितना मेरे को मालूम है। तो ये था, उसके बाद वो क्या हुआ, एंड दिस वाज वन ऑफ द रीजन। देखो दे वही बोले कि द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड एनफील्ड राइफल, ठीक है, दिस नीडेड टू कैटरीज व्हिच हैड ग्रीस्ड द पेपर कवर, द पेपर कवर हैड टू बी बीटन ऑफ बिफोर लोडिंग द कैटरीज, लोड करने से पहले उसको चबाना पड़ता था। द रूमर्स स्प्रेड दैट द ग्रीस्ड पेपर वाज मेड ऑफ बीफ एंड पोर्क, ये बीफ एंड पोर्क लिखा गया है, यू कैन से दैट फैट्स ऑफ काउज एंड पिग्स, ठीक है, वैसा बोला गया था। एंड लोग क्या सोचेंगे, ऑब्वियसली हम लोग का धर्म नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, and this was a move by the Britishers to defame their religion, लोग वही सोचे, ये सब वही लिखा गया, ठीक है। एंड मंगल पांडे, ठीक है, जो बारकपुर के थे, ठीक है, मंगल पांडे बारकपुर से बोले कि देखो कोई भी ये जो गन है वो आप लोग यूज नहीं करोगे, ठीक है, डू नॉट यूज दैट गन। तो उन्होंने क्या किया, आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम उन्होंने क्या किया, एक उनके ही बैरकपुर, उनके रेजिमेंट के ऑफिसर को, इंडियन वो जो सॉरी ब्रिटिश ऑफिसर को उन्होंने गोली मार दिया, उनको मार दिया, ठीक है, इसलिए उनको हैंग करके उनको मार दिया गया, ठीक है, उनको मार दिया गया, ठीक है। देखो लिखा गया है वही, ठीक है, दिस मंगल पांडे फेल्स yellow soldiers not to use the rifle, ठीक है, on 29th March 1857 he attacked this officer in Barakpur, he was later hanged, ठीक है, 29th मार्च को उन्होंने क्या किया, अटैक कर दिया उनके ऑफिसर के ऊपर, उनको मार दिया, और उसके बाद इनको भी हैंग कर दिया गया, ठीक है, इनको भी चार्ज करके हैंग कर दिया। फिर क्या हुआ, देखो फिर क्या हुआ, ऑन 9th of May, ठीक है, ऑन 9th of May क्या हुआ, ठीक है, ओके रुको जस्ट अ मोमेंट, देखो 9th of May को क्या किया गया, ठीक है, तकरीबन लाइक 80 प्लस और 85 सोल्जर्स, ठीक है, 85 सोल्जर्स, ठीक है, ये लोग क्या किए, हम मना कर दे कि हम लोग को गन यूज नहीं करेंगे, ठीक है, विल नॉट गो टू द ड्रिल ऑल्सो, हम लोग ड्रिल पे नहीं जाएंगे, जो दौड़ने वोड़ने जाते हैं ना सोल्जर सब, वो नहीं जाएंगे, एंड वो सब गन्स भी हम लोग यूज नहीं करेंगे, जिनके लिए इन लोगों को क्या कर दिया गया, इन लोगों को पकड़कर, ठीक है, जेल कर दिया गया, जेल में भर्ती कर दिया गया, किन लोगों को, ये जो 85 सोल्जर्स को है, ठीक है, 85 सोल्जर्स को उनको बंद कर दिया, कहां पर, लगा जेल में। अब देखो जब ये चीज हुआ, व्हेन दे वर जेल्ड, ठीक है, व्हेन दे वर जेल्ड, तो ऑब्वियसली ये 9th May का टाइम है, ठीक है, 9th May है, ठीक है, तो 10th May में वहां से, ठीक है, ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी लोग वहां से आ रहे हैं, ठीक है, ये लोग क्या किए, वो जेल को जाकर अटैक करते हैं, वो क्या करते हैं, वो जेल में जाकर अटैक करते हैं, जो अलग जो लोग होंगे वो लोग क्या करते हैं, जेल को जाकर अटैक करेंगे, जेल को, ठीक है, जेल को अटैक करने के बाद वहां से इन लोग को छुड़ा लेंगे, ठीक है, वहां से इन लोग 85 सोल्जर को छुड़ा लेंगे, एंड जितना भी गन्स होगा, मतलब आर्म्स एंड एमुनिशन होंगे, ठीक है, आर्म्स एंड एमुनिशन उसको लूट कर ले आएंगे, ठीक है, उसको क्या करेंगे, उसको भी लूट कर ले आएंगे। एम आई क्लियर टू एवरीवन, क्लियर, ठीक है। उसके बाद देखो, ठीक है, ठीक है, अब देखो वही जैसे मैंने बताया, ठीक है, 10 मई को क्या हुआ, तो सिपॉइज मेरठ रिवोल्टेड, ठीक है, जो अलग जितने भी सिपॉइज हुआ करते थे वो लोग गए जेल के अंदर से, उन लोगों को निकाले, उनके जितने भी गन हुआ करते उनको सब कैप्चर कर लिए, ठीक है, सब इन लोगों को निकाल कर क्या किया, देखो, द रिलीज द imprisoned sepoys, they attacked and killed the British officers, they looted the guns and ammunitions of the set the building on fire,
ठीक है, समझ में आया कि नहीं? गए, जितने भी कैप्चर्ड 85 सोल्जर्स थे उनको वहां से निकाल दिया, उनका वहां पर जो भी आर्म्स एंड एम्युनिशन गन्स वगैरह जो भी थे उनको लूट लिए, ब्रिटिशर्स को वहां पर मार दिए, और वो जो बिल्डिंग हुआ करता जहां पर वो रखे थे जेल में उसको जला दिए। ठीक है, कौन? ये जो इंडियन सिपाहीज हुआ करता था उस टाइम। ठीक है, बाहर जो आए थे अटैक करने के लिए वो लोग सब। ठीक है, अब देखो फिर क्या किया, वहां से वो लोग कहां से, मेरठ था, मेरठ से वो लोग दिल्ली चलने लगे। ठीक है, मेरठ से क्या किया, वो लोग दिल्ली चले, फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली वो लोग चलने लगे। ठीक है, फ्रॉम मेरठ ट्रैवल दिल्ली वेयर द रेजिमेंट्स ऑफ इंडियन सोल्जर आल्सो रोज रेबेल एंड किल्ड द ब्रिटिश ऑफिसर्स। वहां पर भी वही सब कर रहे थे जाकर। ठीक है, अब देखो ये जो हो रहा था ये विदाउट एनी लीडरशिप हो रहा था। वो क्या होता, विदाउट एनी लीडरशिप ऐसा चीज हो रहा था। तो वो लोग सोचे वी नीडेड ए लीडर हु विल बी विद अस टू शो अस सम पाथ। ठीक है, हम लोग के साथ कोई रहे, हम लोग का कोई लीडर है जो हम लोग को आगे का मार्ग दिखाए। ठीक है, आगे का रास्ता दिखाए। सो क्या किया वो लोग, फोर्सफुली जाकर कहां पर पहुंचे, जाकर रेड फोर्ट के पास पहुंचे। ठीक है, रेड फोर्ट के पास पहुंचे, जहां पर रेड फोर्ट के अंदर जो पैलेस के अंदर कौन हुआ करता था, बहादुर शाह जफर। ठीक है, कौन हुआ करता था, बहादुर शाह जफर। जब वो लोग जाकर बोले अंदर जाने के लिए तो वहां पर उनके जो गार्ड्स वगैरह इन लोगों को नहीं छोड़े, फिर भी वो लोग फोर्सफुली क्या किए, रेड फोर्ट के अंदर गए एंड प्लीडेड, किसको जाकर बोले, किसको, बहादुर शाह जफर को, कि आप हम लोग का लीडर बनिए। ठीक है, हम लोग का लीडर बनिए और चलिए हम लोग भी लड़ेंगे। ठीक है, तो विच क्या हुआ था, बहादुर शाह जफर क्या मना कर रहे थे। बहादुर शाह जफर बहुत ही मना की कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। सी उसका एक रीजन भी था, उस टाइम ही वाज 82 इयर्स एज, 82 years, 82 के 84 आई जस्ट फॉरगॉट, 82 समथिंग आई गेस। ठीक है, उस टाइम उतना उनका एज हुआ करता था बहादुर जफर का। ओके, बहुत मना करने के बाद बिकॉज ऑफ एक्सेसिव परसुएशन बाय दीज इंडियन सिपाहीज, वो बोले कि ठीक है मैं लड़ूंगा, मैं जाऊंगा, तुम्हारा लीडर बनूंगा। ठीक है, वो भी सोचे कि हाँ मैं भी अगर हम लोग सब मिल जाएंगे तो शायद हम लोग ब्रिटिशों के यहाँ निकाल देंगे और फिर से मुगल एम्पायर यहाँ पर हो जाएगा। एंड दूसरे जो ये लोग बहादुर शाह जफर ने क्या किया, दूसरे जो किंग्स हुआ करते उनको भी चिट्ठी लिखा। ठीक है, उनको भी चिट्ठी और संदेशा पहुंचाया कि आप लोग हम लोग को जुड़िए, ताकि हम लोग एक कॉन्फेडरेशन बना कर एक इकट्ठा होकर हम लोग ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ेंगे। तो वो लोग क्यों राजी है, वो लोग भी सोचे अगर ब्रिटिश रहेगा तो हम खुल के भी तो राज भी नहीं कर सकते, अगर मुगल रहेगा तो मुगल विल द एम्परर, तो हम लोग उसके अंडर रहकर भी हम लोग अच्छे से राज कर पाएंगे। तो वो लोग भी इसलिए उनके साथ जुड़ गए। ठीक है, देखो, ठीक है, द सिपाहीज गैदर्ड अराउंड द रेड फोर्ट एंड ऑल द मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर टू अज्यूम द लीडरशिप ऑफ रिवोल्ट। ठीक है, और देखो हाँ ये भी क्या था, ये तो जो भी थे, एंड बहुत सारे जमींदार भी हुआ, लैंडलॉर्ड्स भी जोड़े। क्यों? कि उनका लैंड भी ले लिया गया था, उनका लैंड भी ऑक्शन कर दिया गया था, उनको भी अपने पोजीशन से हटाया गया था। तो उसके गुस्से से भी बहुत सारे चिफ्टेन मतलब देखो चिफ्टेन जो होता है ना, आज यू कैन कॉल देम चिफ्टेन्स आर एग्जैक्टली नॉर्मल आज के टाइम का सरपंच भी बोल सकते हो। ठीक है, लीडर ऑफ द विलेज। ठीक है, लीडर ऑफ द विलेज और लीडर ऑफ एनी ट्राइब, चीफ्स, चिफ्टेन, राजन, यू कैन से दैट आल्सो। ठीक है, ये सब नाम है, जैसे कि मैं बोल रहा चीफ, चिफ्टेन, ठीक है, राजन, ये सब नाम है। ठीक है, लीडर, ठीक है, जो होता है सबसे ऊंचा वाला पोजीशन जो होता है गांव में, तो उनका था। ठीक है, तो वह उसके बाद देखेंगे। ठीक है, रुको, ठीक है, अब देखो अब क्या है, बहुत सारे लीडर्स हुआ करते थे उस टाइम, क्योंकि जब रिवोल्ट हुआ तो अलग अलग रीजन से लोग आए थे लड़ने के लिए, अलग अलग रीजन से लोग लड़ भी रहे थे। ठीक है, विद द ब्रिटिशर्स। सो हु आर दोज लीडर्स, हम लोग थोड़ा सा के ऊपर थोड़ा सा ब्रीफिंग कर लेंगे, पर उतना ही यहाँ पर इतना कुछ नहीं है, थोड़ा मोड़ा कुछ ब्रीफिंग है। ठीक है, हम लोग कैसी, जैसे कि नाना साहेब हो, तांतिया टोपे हो, रानी लक्ष्मीबाई हो, ठीक है, रानी अवंतीबाई हो, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, हम लोग के जो ब्रिजेश कादिर हो, ठीक है, ये भी बहुत सारे हैं। ठीक है, देखो क्या हुआ, जो नाना साहब जो थे, नाना साहब जो थे, ठीक है, नाना साहब जो कि पेशवा बाजीराव के जो बेटे थे हुआ करते थे, अडॉप्टेड सन। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उस टाइम जहां वो जगह में सबको पहले ब्रिटिश गैरिशन, पता है गैरिशन जो बाहर वाला एरियाज होता है जहां पर सब फूड सबका स्टोरिंग है, उसको गैरिशन बोलते हैं। ठीक है, जहां पर बाहर के पूरा जो क्षेत्र के बाहर मतलब रीजन के बाहर जाकर पूरा एंड साइड में, ठीक है, जो सब जो स्टोरेज हाउस की तरह जो बोलते हैं उसको गैरिशन भी बोल सकते हैं वहां पर। ठीक है, तो वहां पर जाकर कि वो डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज पेशवा। ठीक है,
जितने भी आर्मीज हुआ करते, ब्रिटिश आर्मी हुआ करते, वहां से इनको निकाल दिया पहले उस जगह से। निकालने के बाद ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज पेशवा। फिर क्या हुआ, बेगम हजरत महल, ठीक है, बेगम हजरत महल, ठीक है, डिपोज नवाब ऑफ अवध वाजद अली शाह, ठीक है, ये आल्सो पार्टिसिपेट किए। एंड उनके जो बेटे थे बिरजिस कादिर, he declared the नवाब ऑफ अवध, he declared himself as the नवाब ऑफ अवध, ये भी हुआ करते थे। रानी लक्ष्मी के बारे में तो जानते ही भी है। उनके साथ कौन थे, तांतिया टोपे थे, ठीक है। अवंतीबाई लोधी जो थी रामगढ़, ठीक है, मध्य प्रदेश वाला रीजन, ठीक है, मध्य प्रदेश रीजन, वहां से फाइट कर रही थी, वो भी था, ठीक है। अहमदुल्ला शाह, ठीक है, एक मौलवी हुआ करते थे लखनऊ से, वो भी आए थे जुड़ने के लिए। जनरल बख्त खान ऑल्सो थे, ठीक है, बख्त खान ऑल्सो बरेली से, वो भी लीडरशिप लिया सिपॉइज लोगों का, ठीक है, कहां पर, जो दिल्ली से जो ब्रिटिश फाइट करते। कानपुर से कौन थे, कुंवर सिंह जी से, ठीक है, जिन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट भी लड़ा था। आम आई क्लियर, क्लियर टू एवरीवन। ये बस थोड़ा थोड़ा नाम है जो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आपको याद रखना होगा, ठीक है। ये वाला कुछ इतना वाला इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है, बस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आप सुन लीजिए कि कौन कहां से लड़ रहा था, क्योंकि एग्जाम में कभी मैच द फॉलोइंग में आ जाता है कि कौन किस रीजन से फाइट कर रहा था, ठीक है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि कौन कहां से फाइट कर रहा था, ठीक है। फिर क्या हुआ इसके बाद जो होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो बात करेंगे फिर से, ठीक है, ठीक है। क्या हुआ, हाँ, देखो, जितने भी जब ब्रिटिश को पता चला और ब्रिटिश देख रहा था कि नहीं अब तो बहुत ज्यादा ही हो रहा है, नाउ द इंडियंस वेयर इन नॉट इन मूड कि हम लोग अभी उनसे बच सके, वो लोग हमको मार के ही रहेंगे, हमको भगा कर ही रहेंगे। तो उन्होंने क्या किया, हेल्प के लिए उन्होंने क्या किया, बाहर से इंग्लैंड से रीइंफोर्समेंट मंगाया, एक्स्ट्रा आर्मीज हुआ, एक्स्ट्रा आर्म्स एंड एमुनिशन हुआ, कुछ भी हुआ, बाहर से उनको पहले मंगाया। और क्या किए, जिस जिस जगह में अटैक हो रहे थे वहां पर जाकर अटैक भी किए, ठीक है, वहां पर जाकर वो लोग अटैक भी किए। देखो और भी क्या था, उन्होंने ऐसा बहुत सारे लॉज भी बना दिए, तुरंत तुरंत बहुत सारे लॉज बना दिए कि अगर तो कि जो भी कन्विक्टेड है, जो भी कन्विक्टेड उनको पनिशेबल ऑफेंस हो जाए और उनको जल्दी से जल्दी वो जेल पर कर पाए, ठीक है, ये सब लॉज बने। देखो क्या हुआ, ठीक है, रीइंफोर्समेंट फ्रॉम द इंग्लैंड, इंग्लैंड से ज्यादा कुछ भी हो, आर्मीज हो, ठीक है, एमुनेशन हो, कुछ भी हो, रेनफोर्स मंगा लिए, ठीक है। एंड जो भी लॉस्ट स्टेट से, जितने भी लॉस्ट स्टेट से जहां पर वो अटैक होते वहां पर जाकर फिर से वहां से अटैक उनके वहां से फिर से ले आ रहे थे, लखनऊ वखनऊ सब वहां से भी ले आए, ठीक है। और क्या किया, बहुत सारे लॉज पास किए जिसके कन्विक्ट, ठीक है, सेंटेंस को डेथ पेनल्टी दे सके, लॉज पास के तुरंत, अगर कोई किसी को भी हम लोग पकड़ लिए ये रिवोल्ट में, हम लोग उसको पकड़ कर तुरंत ही डेथ सेंटेंस दे देंगे, वो भी कर। फिर क्या हुआ देखो, उसके बाद भी बहादुर शाह जफर जो था उनको पकड़ा गया, वो भी पकड़े गए बहादुर शाह जफर, उनके जो और वो जीनत जो है उनके जो वाइफ थे उनको भी पकड़ा गया, ठीक है। उनको रंगून भेज दिया गया, रंगून वहां पर, और उनके 2 साल के बाद उनका भी डेथ हो गया था, ठीक है, 2 साल के बाद। एंड इनके सामने ही उनके बेटे और ग्रैंडसन को गोली मार दिया गया था, बहादुर शाह जफर के बेटे एंड उनके ग्रैंडसन को उनके सामने ही गोली मार दिया गया था। और इनको बीवी को कहां पर मतलब भेज दिया गया, रंगून के एक जेल में, ठीक है, जहां पर 2 साल के बाद इनका भी मौत हो गया, ठीक है। तो लखनऊ को फिर से रिकैप्चर कर लिए, ठीक है, लक्ष्मीबाई को मार दिए, डिफीटेड एंड किल्ड इन 1858 आल्सो। एंड देखो अवंतीबाई भी, ठीक है, वो भी हार गई, अपना जो मंडाला वाला जो रीजन था मध्य प्रदेश का, वो भी हार गई, ठीक है। तांतिया टोपे जो थे वो वहां से निकल कर चले गए थे सेंट्रल इंडिया के, तो जो मध्य प्रदेश वाला एरिया जो वहां जंगल में चले गए थे, और वहां से कुछ दिनों तक उन्होंने फाइट किया गुरिल्ला वाला, लेकिन वो भी बाद में 1 साल के बाद पकड़े गए और उनको भी मार दिया गया, अप्रैल में उनको भी मार दिया गया, ठीक है। एंड उसके बाद भी ब्रिटिशर्स, ठीक है, उसके बाद भी ब्रिटिशर्स जो थे ना वो भी वो लोग हाँ हम लोग अभी बहुत सारा खून खराबा कर लिया, अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा उनको रिहाई देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे रिवार्ड्स बोले कि देखो अगर कोई हम लोग के साथ लॉयल होगा, कोई लॉयल होता, ठीक है, लॉयल अगर होता कि लॉयल कोई था तो हम लोग उनको रिवार्ड्स देंगे, ठीक है, उनके जमीन उनसे नहीं लेंगे, ऐसे बहुत सारी चीज भी उन लोगों को बोला था। क्या हुआ देखो, उसको पढ़ेंगे क्या क्या, ठीक है। टू विन बैक द लॉयल्टीज announced awards for zamindars who had remained loyal to the British in the revolt। जो भी ब्रिटिश के साथ लॉयल हुआ करता था उनके लिए अवार्ड्स बोले, रिवार्ड्स बोले, पैसा वैसा या फिर जमीन वमीन, वो भी उन लोगों को बोला गया था, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब क्या होगा कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ देखो, जब कैप्चर कर दिया गया, रिवोल्ट को रोक दिया गया, अभी तो बहुत सारा खून खराबा हो गया ना, बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया, अभी शांत करना है सिस्टम को, तो क्या करेंगे, तो यहां पर कौन आई ना, ब्रिटिश की रानी आई, क्वीन विक्टोरिया, ठीक है, ब्रिटिश की रानी आई। तो उन्होंने क्या बोला
कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आज के बाद से नहीं रहेगा, ठीक है। वो क्या बोले, ये आज के बाद से नहीं रहेगा, एंड द पावर विल बी कंप्लीटली टू कम टू द ब्रिटिश क्राउन, वो मेरे पास वो पावर आ जाएगा। पहले बात ये बोल दिए, ठीक है। फिर क्या बोले, क्या बोले, हाँ, कि एक नया सीट बनाया जाएगा, एक नया सीट बनाया जाएगा, मतलब क्या, दैट इज सेक्रेटरी टू द स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। सेक्रेटरी टू इंडिया, सेक्रेटरी टू द स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। एक नया पोजीशन बनाया गया सेक्रेटरी टू द स्टेट ऑफ इंडिया, जो कि इनको कौन असिस्ट करेगा, इंडियन काउंसिल जो उस टाइम होगा इंडिया में, तो वो इनको असिस्ट करेगा, जो कि काम धाम देखेगा इंडिया में कैसा क्या चल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या चल रहा है, और डायरेक्टली क्वीन को रिपोर्ट करेगा। ये कर दिया गया। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, हाँ, इसके बाद क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल वाला सीट था, जो गवर्नर जनरल सीट था, उसको क्या कर दिया गया, वाइसरॉय कर दिया गया। क्या कर दिया गया, वाइसरॉय कर दिया गया, ठीक है। ये भी हुआ, ठीक है। और क्या हुआ, और ब्रिटिश ने ऐसा बोला, ठीक है, क्या बोला, कि अगर, ठीक है, उन्होंने दो ठो चीज बोला, कि क्या, पहली बात, तुमने किसी को, किसी भी व्हाइट मैन, मतलब व्हाइट ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा नहीं होगा, ठीक है। और क्या होगा, तुम ब्रिटिश सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करोगे, मतलब सजरेनिटी को एक्सेप्ट करोगे, क्वीन को एक्सेप्ट करोगे कि तुम उसके अंडर हो, एंड तुमने कोई अगर किसी भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स को नहीं मारा है, अगर तुम उसके बाद भी तुम लोग रिवोल्ट में थे और हम लोग अगेंस्ट लड़े थे, तब भी तुमको कुछ नहीं बोला जाएगा, तब भी तुमको तुम्हारा जमीन दिया जाएगा, तब भी अभी भी तुम लोग अपने जो अभी क्या करोगे, तो तुम्हारे जो अपने एडॉप्टेड सन है, तो उनको भी अभी वो राजा बन सकते हैं, उनको कोई भी तुम्हारा ऐसे करके कोई भी एनेक्सेशन नहीं होगा जमीन का, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हुआ, सब्सिडियरी, ये सब नहीं होगा, बस तुमको ब्रिटिश के अंडर रहना पड़ेगा, उसका सॉवरेनिटी तुमको मानना पड़ेगा, ये चीज बोले, ठीक है, ठीक है। जैसे देखो, गवर्नर जनरल कॉल्ड एज वाइसरॉय, ठीक है, अपॉइंटेड सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है, ब्रिटिश पास्ड लॉ दैट पार्लियामेंट एंडेड द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड एस्टैब्लिश ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। जैसे जो सब चीज बोला वही सब लिखा गया है, ठीक है। एश्योर दैट रूलिंग चीफ्स ऑफ द कंट्री वाज लैंड वुड नॉट बी इंडिफरेंट टेकन अवे, अभी ऐसे ऐसे करके तुम्हारा जो टेरिटरी है, लैंड, उसको हम नहीं लेंगे। They are also allowed to pass their kingdoms to their adopted sons, जैसे कि मैंने बोला, अभी adopted sons है, उनको भी तुम लोग जो राज सिंहासन दे सकते हो, ठीक है। फिर क्या हुआ, इंडियन रूलर्स had to accept Queen Victoria as the paramount, ठीक है, पावर, एंड had to was subordinate to the British crown, जैसे बोला, ये चीज तुमको मानना ही पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं, am I clear? ओके, लास्ट था, लास्ट का एक बात चीज बता देता हूं, ठीक है, ठीक है। अब सुनो, ये लास्ट वाला चीज क्या था, सी इट वाज डिसाइडेड नंबर, हाँ, और भी एक चीज था, क्या बोले, ये भी बोले कि देखो, पहले पहले क्या होता, इंडियन सिपॉइज ज्यादा हुआ करते थे उनके आर्मी की, वो लोग चाहते थे कि उनके लोग सेफ रहे, तो इंडियन सिपॉइज जो हुआ करते थे उनको घटा दिए, ठीक है। दे स्टार्टेड टू हायर और रिक्रूट यूरोपियन सोल्जर्स मोर एंड दे डिक्रीज द रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियन सोल्जर्स, ये भी बोले। एंड उनको ये भी पता था कि जो गुरखास हुआ करते थे, जो पठान हुआ करते थे, जो सिख हुआ करते थे, दे आर वेरी पावरफुल, दे आर गुड एट फाइटिंग, सो उनको भी रिक्रूट करना शुरू कर दिए थे, ठीक है। ये भी उन्होंने किया था, ठीक है। देखो, the number of Indian soldiers increase, जो number of European soldiers, in the Indian, okay, they reduced the number of Indian soldiers, ठीक है, and increase the number of यूरोपियन सोल्जर्स, ठीक है। यूरोपियन सोल्जर्स को बढ़ा दिया, इंडियन सोल्जर्स को घटा दिया, ये भी हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जो सिख हुआ करते थे, गुरखास हुआ करते थे, पठान हुआ करते थे, क्योंकि उन्होंने बहुत हेल्प किया था ब्रिटिश सप्रेसिंग को रेबेलियन में, तो उनको डिसाइड किया उनको भी लार्ज नंबर में रिक्रूट करेंगे, ठीक है। एंड लास्ट में ये भी बोले कि आपका जो भी कल्चर है, जैसा भी कल्चर है, ठीक है, आपका जो इंडियन कल्चर है, उसको हम रेस्पेक्ट करेंगे, उसको कभी निंदा नहीं करेंगे, हम लोग उसको वो भी करेंगे, ठीक है। वी विल रेस्पेक्ट द रिलीजियस, सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ इंडियंस, ठीक है। एंड ऑल्सो वो लोग ऐसा भी बोले, हम लोग ऐसा भी कुछ नए नए स्कीम्स लाएंगे, कुछ लॉ लाएंगे, जिसमें जो जमींदार हुआ करते हैं, जो लैंडलॉर्ड्स हुआ करते हैं, उनको भी बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, उनका भी उसमें इंटरेस्ट बनेगा, ठीक है। ये सब जो था, ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप यू गॉट इट गुड और यू गॉट इट राइट, जितना भी था, जो भी स्टोरी मैंने बताया, बस स्टोरी को सुनो, गो थ्रू द एनसीईआरटीज, गो थ्रू दिस पीडीएफ इफ यू वांट, नॉट एन इश्यू। मेरे को पॉज बीच बीच में पॉज करके करते थोड़ा पीडीएफ को भी पढ़ लेना, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। एंड दैट इज एनफ, जितना भी मैंने दिखाया यहाँ पर, दैट इज एनफ फॉर योर एग्जाम,
ठीक है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, इसको सुन सकते हैं, ठीक है, देख देख कर थोड़ा पीटी जो पीपीटी है उसको थोड़ा देख देख कर उसको कुछ वहां से भी आप लोग कुछ नोट भी बना सकते हैं, ठीक है। सो एज ऑफ नाउ दैट्स इट फॉर टुडे, विल कम अगेन ऑन आई गेस ऑन मंडे, अगर होगा तो मंडे, नहीं तो कल भी एक मैं अपलोड कर लूंगा, अगर नहीं होगा तो फिर से मैं मंडे को फिर से एक क्लास लेकर आऊंगा। आई होप, बिकॉज वीकली 6 days इज ओके फॉर द क्लासेस, एक दो दिन मेरे को मिल जाना चाहिए फॉर द रेस्ट जिससे कि मैं सोचता हूँ। सो दैट्स इट, थैंक यू, ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, गुड बाय।